May I request all respected guests to kindly rise for the national anthem presented by students of GNM. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-aliyyul azim. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में देदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में देदवर पैदा. It is indeed a deep honor and privilege to create this occasion. We have Honorable Lieutenant Governor UT Ladakh Shri Kavinder Gupta ji, guest of honor Honorable Chairman CEC Ladakh Autonomous Development Council Kargil Dr. Muhammad Jafar Akhund, and Honorable Member of Parliament Ladakh Haji Hanifa Jan sir, Honorable Executive Councillors and Councillors Ladakh Autonomous Development Council Kargil, our special guests were the Chief Secretary Dr. Pawan Khotwal ji, IAS, were the Principal Secretary Health and Medical Education UT Ladakh Shri Sanjeev Kherwal IAS, were the Deputy Commissioner Kargil Shri Rakesh Kumar IAS, SSP Kargil Nitin Yadav IPS, Director Health Services Dr. Tashit Hellis, other head of the departments, Chairman Health Committee Janab Ali Majasi, all heads of religious organization,
HODs, medical consultant doctors, block medical officers, and dear students and media personnel. Assalamu alaikum, Jule and Namaste. It is a time to felicitate our guests. I would like to invite Director Health Service Tashik Hellas sir to present a traditional shawl. Now, I would like to request CMO Kargil, Dr. Kachuriya Kadali Khan, Mohammad Hanifa Janji. And then I would like to invite medical. Now, I would invite Kherwar ji. Thank you. Thank you. UP Ladakh, respected dignitaries, esteemed guests, ladies and gentlemen, very good morning. Today we are gathered here to celebrate a truly historic and momentous occasion, the inauguration of 3 Tesla MRI facility at District Hospital Kargil. Thank you. This achievement marks yet another significant milestone in the journey of District Hospital Kargil towards strengthening advanced healthcare services in the remote and challenging region. The installation of this state-of-the-art MRI machine will immensely benefit the people of Kargil, especially our patients, tourists, members of the armed forces, and patients from neighboring regions. It will reduce the burden of referrals, save precious time and resources, and ensure timely and accurate diagnosis right here at our doorstep. On this August occasion, I feel deeply privileged and honored to welcome Shri Kavinder Gupta ji, Honorable Lieutenant Governor of UT of Ladakh. Sir, your gracious presence here, despite the harsh winter conditions, reflects your unwavering commitment to people welfare and your concern for the healthcare needs of the people of this region. And unfold the curtain. Ladies and gentlemen, now, and it is dedicated to the Republic of UT Ladakh by Honorable LG Kavinder Gupta ji. Thank you, sir. Thank you so much. मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल, आज इस शुभ अवसर पे पूरे करगिल वासियों को मुबारकबाद कहना चाहूँगा, क्योंकि 3 टेस्ला MRI मशीन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल को गोदाम पे लॉन्च हो गया। उसके साथ साथ में पूरे UT गवर्नमेंट, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारा सर CC साहब, MP साहब, वर्दी डिप्टी कमिश्नर और हमारा वर्दी चीफ मेडिकल ऑफिसर और बाकी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, सबका मशहूर हूँ। तो उन सब ने एक रिकॉर्ड टाइम पे और बिल्कुल किसी डिले के बगैर जो है लॉन्च करके 2 महीने में ये हमारा मशीन यहाँ लग गया और आज ऑपरेशनल हो गया और ऑनरेबल LG साहब के हाथों इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। हमारा मशीन का, हमारा पब्लिक का बहुत पुराना डिमांड था ये। इसके न होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को चंडीगढ़, जम्मू रेफर करना पड़ता था और अब यहाँ पे हमारा लगने के बाद बहुत सारे पेशेंट को ये अननेसेसरी जो है ट्रैवल
और उसके साथ टाइम और उनके पैसे का बचत हो जाएगा। यहीं पे हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में घर के पास, अपने ब्लॉक के पास यहाँ पे इनका MRI पॉसिबल हो जाएगा। और साथ ही MRI के अगर कुछ फायदे के बारे में अगर बोलना चाहें तो सबसे तो MRI का रेडिएशन बहुत कम होता है, तो इसमें प्रेग्नेंट लेडीज को जो CT हम नहीं कर पाते हैं उनके प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसमें प्रेग्नेंट लेडीज का भी MRI होता है। और खुसूसन सॉफ्ट टिश्यू इमेजेस जैसे कुछ कंडीशन हमारे स्पाइनल के जो केसेस होते हैं, शैटिका जहाँ पे स्पाइन में हमारे नर्व के जो कंप्रेशन होता था, डिस्क प्रोट्रूजन जैसे कुछ बीमारियां होते हैं जहाँ पे स्पाइन के रीजन देखना पड़ता है ऑर्थोपेडिक या सर्जन को, वो सब चीज़ें हमारे में डिटेल में देख पाएंगे। साथ ही साथ जो कार्डियक के जैसे मैंने ये मालूम किया कि हार्ट अटैक के जो इनिशियल 5-6 घंटों में 4 घंटों में जो चेंजेस नहीं आता था और पता नहीं चलता था डायग्नोज होने में, हार्ट अटैक में जब मसल ब्लॉक होता था वो चेंजेस इनिशियल जो पता नहीं चलता था, तो इनिशियल डायग्नोसिस करने में भी मदद मिलेगी। मोबाइल कमजोर मोबाइल मामू क्या बाद में एक फोटो ले लेंगे जी, सब नया पूरा अंदर से देखते हैं। हाँ, ये दिखा दीजिए। अकेले अच्छा ना लगता, सफारी फिर भी नहीं है। तेरा तो योगदान से तेरा MP, Union Territory of Ladakh, Hanifa Jan ji,
यहाँ पे मौजूद एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, डिप्टी कमिश्नर, मेरे कलीग सेक्रेटरीट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के संजीव खीरवार जी, DCN SSP ने, और इस हॉल में मौजूद फैकल्टी मेंबर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमान और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन वाकई सर हिस्टोरिक है, क्योंकि ये जो सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है जो जिसे हम डायग्नोसिस में कहते हैं या रेडियो डायग्नोसिस में कहते हैं, वर्ल्ड में जो सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट है वो 3 टेस्ला MRI मशीन है, और वो आज जो है उसका इंस्टॉलेशन जो है उसका कमिश्निंग आपके हाथ से हुआ है। तो जो दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग मशीन है वो हमारे लद्दाख के दूर दराज इलाके के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है आज उसका कमिश्निंग हुआ है, जिसका फायदा लोगों को होगा। हमारे पास टेस्ला मशीन MRI की लेह में भी है, वो 1.5 टेस्ला है, वो हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने CSR में दी थी, और उसका भी वहाँ बहुत सारा फायदा लोगों को हुआ है। तो 1.5 या टेस्ला मशीन MRI मशीन जो है, इसका एक काफी देर से दरीना जो ये मांग थी यहाँ पे, और हम पिछले 4 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि ये मशीन जो है वो लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कारगिल में लगे। लेकिन क्योंकि ये इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है, तो एक तो इसमें खरीदने की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल होती है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हम 1.5 टेस्ला ले रहे थे, फिर हमें लगा कि 1.5 टेस्ला मशीन लेने से हमने पूछा कि उससे बेहतर जो मशीन है वो 3.3 टेस्ला की होती है। तो क्योंकि ये सारी मैग्नेटिक रेजोनेंस एक टेक्नोलॉजी उस पर काम करती है, इसमें एक्सरे रेडिएशन नहीं होता, ये फायदा होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इवन प्रेगनेंसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती जो कि खतरनाक होती है बॉडी के लिए। मतलब इसलिए जब आप किसी एक्सरे रूम में जाते हैं तो वहाँ आपको वहाँ जो एक्सरे कर रहा होता है वो भी बड़ा केयरफुली, उन्होंने भी बड़ा एक प्रोटेक्टिव लेड का एक ओवरऑल पहना होता है ताकि उनको रेडिएशन ना हो। पेशेंट को तो जो थोड़ी सी होनी है वो थोड़ी सी होनी है, लेकिन MRI में ऐसा नहीं है। लेकिन MRI में दूसरा खतरा ये कि ये बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होता है, और ये पावरफुल मैग्नेट इतना पावरफुल होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी लोहे की चीज हो, इवन छोटा सा पिन भी अगर हो, या आपके अंदर कोई इम्प्लांट हो जिसमें कोई मेटल हो, तो ये उसको खींच लेगा। मतलब अगर आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में तो उसकी इतनी पावर से खींचेगा कि आपको जख्म भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इक्विपमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत ही एडवांस्ड इक्विपमेंट है, और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरर जो वर्ल्ड में है 2-3 ही है, सेमंस है, GE है, तो ये GE का है मुझे लग रहा है, और इसकी कीमत लगभग 25 करोड़ प्लस है। तो इसका जो इस्तेमाल है अब ये बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल में सर, जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया, चाहे वो MRI हो जो सबसे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, चाहे वो ब्लड टेस्ट है, इसके अंदर इस रेंज में जितने भी टेस्ट हैं वो सब फ्री में होते हैं पब्लिक को। किसी भी टेस्ट का 1 रुपया भी जो है हम पब्लिक से नहीं लेते। तो महंगे से महंगा टेस्ट, सस्ते से सस्ता टेस्ट सब लद्दाख में फ्री है। और मैं वो पब्लिक में मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो स्टाफ को भी ये इल्म होना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए जो भी पेशेंट यहाँ आता है कि आप ये टेस्ट करो, जिसको जरूरी है वो टेस्ट होना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कविंदर गुप्ता जी, ऑनरेबल चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर जफर अहमद साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर आगा सईद मुस्तफा साहब, श्री डॉक्टर पवन कोतवाल जी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ लद्दाख, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री संजीव खीरवार साहब, श्री अली मजाज साहब, चेयरमैन हज कमेटी, डायरेक्टर हेल्थ DC साहब, SSP साहब, यहाँ तशरीफ रखे हुए बाकी ऑफिसर्स और भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्कार।
सबसे पहले मैं ऑनरेबल एलजी साहब का मैं दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ पे तशरीफ ला के अपने ही शुभ हाथों से ये जो करगिल डिस्ट्रिक्ट के हमारे हॉस्पिटल के जो देरीना वहाँ पे ये MRI मशीन आज अपने हाथों से जो है हमारे आवाम की सुपुर्द आपने किया, उसके लिए आपको शुक्रिया। और पूरे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे कौंसिल सीसी साहब के चेयरमैनशिप में जो हमारे कौंसिल है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सीओ से लेके तमाम सुपरिटेंडेंट से लेके तमाम स्टाफ और करगिल के आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पिछले कई सालों से जो जिस चीज़ के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कौंसिल लेवल पे, सब लेवल पे, तो वो देरीना माह जो है आज पूरा हो के जो है हम आवाम के सुपुर्द किया। और आने वाले दिनों उसमें इंशाल्लाह हमारे करगिल के आवाम जो है इससे फ़ायदा लेंगे। इस मशीन को आज सक्सेसफुली कामयाबी के साथ यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ रहा। जिस तरह से अभी यहाँ पे बताया गया है कि पहले जो सेक्रेटरी साहब थे, खासकर एलजी साहब, बीडी मिश्रा साहब, और इसमें मैं जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तब से मैं भी इसको फॉलो कर रहा था। और चीफ सेक्रेटरी साहब जब जिस हिसाब से अपने ज़ाती इंटरेस्ट से, क्योंकि इसमें काफ़ी ऊपर नीचे भी हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ ये अल्टीमेटली हमारे लिए ही फ़ायदा हुआ कि आप एक मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको मशीन आया। अगर उस वक्त लाता तो जैसे चीफ सेक्रेटरी से साहब ने अभी फरमाया, तो इसमें भी एक ये है कि अच्छा एक हमारे लिए रहा, लेकिन काफ़ी साल इसमें ऊपर नीचे रहा। लेकिन हमारे एलजी बीडी मिश्रा जी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे एलजी साहब गवर्नर गुप्ता जी साहब, जब से इन्होंने ये पद संभाला, इनके सामने ये इशू आया, तब से ज़ाती तौर पर इन्होंने भी अपने इसमें इंटरेस्ट लगा के जो है कोशिश किया जल्दी से जल्दी इस मशीन को, चूँकि चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी फरमाया कि ये फॉरेन कंट्री से इसको आना था, तो जल्दी से खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब, एलजी साहब दोनों ने ज़ाती इसमें अपने इंटरेस्ट लेके इसको जल्दी से जल्दी यहाँ लाने की कोशिश किया और सक्सेसफुली आज लोगों की सपोर्ट किया है। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्री हनीफा जान जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ श्री संजीव खेरवार जी, हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर अल्लाह मुस्तफा साहब, चेयरमैन हज कमेटी अली मजा साहब, डीसी करगिल श्री राकेश कुमार जी, एसएसपी करगिल नितिन जी, डायरेक्टर्स हमारे सीएमओ साहब, हमारे एमएस साहब और जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी ब्लॉक मेडिकल अफसर और जितने भी यहाँ पे ऑडियंस हमारे जो मजहबी इदारों के हेड्स यहाँ पे बैठे हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम, जुड़े नमस्कार। वाकई में सर ये आज एक ड्रीम कम ट्रू है हमारे लिए, और करगिल की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में ये हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, जो आज हमारे 3 टेस्ला MRI मशीन के सूरत में आपके सामने आज अभी ऑनरेबल एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया, इनॉग्रेशन कर दिया। हमें लगता है ये छोटा सा है, मगर सच पूछिए आप जहां भी दिल्ली या आप चंडीगढ़ जाते हो या कहीं भी मेट्रोपॉलिटन सिटी जाते हो, वहां बड़ा करके लिखा होता है कि यहाँ MRI 3 टेस्ला का होता है बोल के। मतलब वो एक उनके लिए जैसे प्राइवेट सेक्टर में या हमारे जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने कहा, ये बहुत हमारे जो एपेक्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टर्शरी, सुपर टर्शरी जिनको कहते हैं, वहां पे भी बहुत कम जगहों पे ऐसे हमारे इस टाइप का इक्विपमेंट जो मॉडर्न, सबसे मॉडर्न हमारा ये इक्विपमेंट है, इसको डायग्नोसिस के लिए वो आज हमारे करगिल में अवेलेबल है। तो उसका जो श्रेय मेरे हिसाब से सर पहले डॉक्टर BD मिश्रा सर जो हमारे एक्स एलजी साहब थे, सच पूछे उन्होंने इतना ये कोशिश किया सर 1.5 टेस्ला का, जैसे हम जानते हैं हमारे उस वक्त डॉक्टर
कोतवाल सर एडवाइजर साहब थे, तो उस वक्त हमें 1.5 टेस्ला का ये हुआ था। तो उसके बाद क्या हो गया, सिर्फ 1.5 टेस्ला का हमने देखा वो 17 करोड़ का कुछ था। फिर बाद में हमें कहीं से पता चला कि वहाँ पौंडीचेरी में या कहीं साउथ में एक है, वो तो 1.5 टेस्ला का 2 मशीन आ गया उनको 19 करोड़ में। तो ये फिर हमारा उस वक्त के हमारे जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे डॉक्टर वसंत कुमार, वो खुद वहां गए पौंडीचेरी या कहीं पे, हमारे एडवाइजर सर और देन एलजी साहब ने वहां बेचा। फिर वहां पे पता चला, ये तो बाद में हमारे लिए सर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। चलो उस वक्त 1.5 टेस्ला नहीं है, मेरे ख्याल में ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। ये जिसे हम कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाद में 3 जो टेस्ला का मशीन आज हमारे पास आ गए, उसके लिए सर उस वक्त के हमारे ऑनरेबल एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा साहब, हमारे अभी डॉक्टर पॉल कोतवाल जी जो उस वक्त एडवाइजर के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, फिर उस वक्त के हमारे डॉक्टर वसंत कुमार जी थे, फिर हमारे उस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर मुटुब दोरजे, और जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उस वक्त के, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया। मगर कुछ न कुछ अल्लाह कहते हैं कि उसका किसी चीज का भी टाइम फिक्स होता है, उस वक्त ये होना है बोल के। ये आज आपके हाथों से होना था सर। हमारे डॉक्टर ये क्या कहते हैं कविंदर गुप्ता सर के हाथों में आज इनॉग्रेशन होना था शायद उसी लिए, और हमारे डॉक्टर पवन कोतवाल साहब को चीफ सेक्रेटरी बन के आज आपके सामने होना था। और आज के दिन में सर हमें खासकर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्रेटरी खिलवाड़ साहब, और आज के डायरेक्टर जो हमारे डॉक्टर थेमलेस है, उनके पूरे टीम जो इसमें इन्वॉल्व थे। हमारे यहाँ पे सीएमओ साहब है, हमारे डॉक्टर लियाकत, डॉक्टर अब्बास जो एमएस है, बहुत सब ने हर एक कोशिश किया, और हमारे डी साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो मेरा कहने का मतलब सर ये एक टीम एफोर्ट था, कलेक्टिव एफोर्ट था। हम जानते हैं बाद में पैसा हमें जमा करने में बहुत इशू हो गया। आज हमारे हेल्थ के एक तो यूटी का हेड है, फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड भी है, फिर हमारे हेल्थ का हेड भी यहाँ पे है। तो ये हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है सर। उसके लिए आप तीनों को सर खासकर बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ हिल काउंसिल, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ करगिल। वाकई में ये हमारे करगिल वालों के लिए बड़ा दिन है और बड़ा अचीवमेंट है। और मेरा ये कहना है सर, लोग शायद समझते नहीं, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे फैसिलिटीज कितना है। मैं आपको 1-2 मिसाल दे दूंगा सर। पिछली बार हमारा एक एक्सीडेंट होके महाराष्ट्र के पेशेंट यहाँ पे कुछ एडमिट हो गए थे, वो बाइक पे आके, वो जैसे आपने कहा सर इतना मुतासिर हो गए। हमारे डॉक्टरों की, हमारे पैरामेडिकल जो स्टाफ है थाना बहुत अच्छा था, हमारे डॉक्टरों के बारे में, हमारे पैरामेडिक्स के बारे में, हमारे जितने भी अस्पताल स्टाफ, हमारा फखर सर, ये दिल हम सर जो है फखर से ऊंचा हो जाता है सर जब हमारे डॉक्टर्स इतना काम करते हैं, स्ट्रेस में भी या कुछ हम जानते हैं कि हमारी फैसिलिटीज दूसरे तरीके से। चलो ये वाला फैसिलिटीज हमारे पास बहुत है, मगर आपके पास बाहर जाके घूमने के लिए, आपके पास लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए, आपके पास कुछ कहीं जाके इसमें रिलैक्स होने के लिए रेस्टोरेंट। इनॉग्रेशन के इस अवसर पर हमारे बीच में कारगिल के सीसी डॉक्टर मोहम्मद जफर आजम साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जनाब हनीफा जान साहब, डॉक्टर पवन कोतवाल जी, श्री संजीव खीरवार जी, श्री राकेश जी IAS DC कारगिल, श्री नितिन यादव जी, डॉक्टर सिंलेस डायरेक्टर हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, यहाँ पर सभी हमारे मीडिया पर्सन्स, उपस्थित भाई और बहनों, आज का ये जो अवसर है ये पूरे सिर्फ कारगिल के लिए ही नहीं, पूरे लद्दाख के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के लिए
पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए एक अत्यंत ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। जिला अस्पताल कारगिल में इस आधुनिक ही नहीं अत्याधुनिक जो 3 टेस्ला फैसिलिटी का शुभारंभ इस बात को स्पष्ट करता है कि अब लद्दाख जैसे दूरस्थ पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग भी आधुनिक जो वर्ल्ड क्लास हमारी हेल्थ केयर सर्विस है उससे वंचित नहीं रहेंगे। ये सारी जो भी है हमारी लद्दाख की जो टीम है ऑफिसर्स की या हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी मेहनत का परिणाम है। लद्दाख की जो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है और इसी पर सभी जो मेरे से पूर्व वक्ता है उन्होंने बात कही है। यहाँ का जो कठिन टेरेन है, यहाँ की जो अत्यधिक ठंड है, लंबा जो सर्दियों का एक मौसम है, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद आज हमें गर्व है कि हम इन सभी चुनौतियों को लांघ करके लद्दाख में हेल्थ सेक्टर को उल्लेखनीय बना पाए हैं और सराहनीय प्रगति की है। इसके लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारे ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे चीफ सेक्रेटरी सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आज का ये कदम इस बात का प्रमाण है कि अब जोग्राफिकल जो डिस्टेंस है, कठिन परिस्थितियों की क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज में बाधा नहीं बनेगा। पिछले कुछ वर्षों से विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं, हमने आयुष्मान का जिक्र किया, वो स्वास्थ्य बीमा का जिक्र किया, ये सारे प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की देन है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोविड-19 जो पैंडेमिक यहाँ पर आया था उसके कठिन समय के बावजूद हमारे देश ने जिस प्रकार से एक दृढ़ता और आत्मनिर्भरता और साइंटिफिक कैपेबिलिटी का परिचय दिया, उससे न केवल देशवासियों को विश्वास मजबूत हुआ है बल्कि पूरी दुनिया में भारत की जो कैपेसिटी और स्ट्रेंथ से परिचय करवाया है। और जो बड़े बड़े ऐसे मुल्क थे जहाँ पर सारी फैसिलिटी थी, अपने आप को बड़े अमीर देश कहते थे, वहाँ पर जो डेथ की संख्या है कोरोना से वो हमारे से कहीं ऊपर थी। भारत में अपने आप में एक ये करके दिखाया, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था उस वक्त। उस दौर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से एक्सपेंशन जो हुई है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपदा से अवसर, जब हमें कोई मुसीबत भी आती है उसमें हम इस प्रकार का बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि वही जो उनकी मेहनत, लगन और सभी ने जो मेहनत की उसी का परिणाम है कि हम अपने देश के अधिकांश लोगों को बचा पाए और जो डेथ रेट था यहाँ पर सबसे कम रहा। इसमें मुझे लगता है कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ था, हमारी जो उसके साथ जो उनका डेडिकेटेड रोल था, उनकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इफेक्टिव यूज ने ये साबित कर दिया कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जो उनका क्लियर विजन है, उसके साथ ही इसको संभव बनाया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार ने सिद्ध करके दिखाया। उसी नेशनल विजन और अप्रोच को सीधा लाभ आज लद्दाख और दूर दराज के क्षेत्रों को पहुंच रहा है। कारगिल में 3 टेस्ला मशीन हमारे की स्थापना सरकार की उस कमिटमेंट को दर्शाती है जिसके तहत हमारा लक्ष्य है अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचे। तो मुझे लगता है कि दूर दराज के इलाकों में भी ऐसा संभव हो पाया, ये हमारे लिए खुशी का अवसर है। ये MRI टेक्नोलॉजी न केवल फास्ट और एक्यूरेट डायग्नोज सुनिश्चित करेगी बल्कि जो सीरियस और कम्प्लेक्स डिजीज हैं उनके पहचान महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाएगी। और आज हमें जिस प्रकार से फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही है उसके माध्यम से हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लद्दाख में ये फैसिलिटीज हमारे यहाँ बैठे उनको मिल रही हैं। कारगिल की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में रहते हुए, दूर दराज के इलाकों में रहते हुए भी उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिलें, इस प्रकार की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रही है और साथ में भारत सरकार की उसमें पूरी सपोर्ट रही है। उसके लिए जो मेहनत है हमारे चुने हुए नुमाइंदों ने की है। इसके अलावा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ सेक्रेटरी हैं और हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उससे पूर्व जो उपराज्यपाल थे
डॉक्टर ब्रिगेडियर मिश्रा साहब, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मुझे लगता है कि सभी के प्रयास से ये चीज़ें संभव हो पाई और आने वाले समय में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपने यहाँ के स्थानीय नागरिकों को दे पाएँ, ऐसा हमारा कोशिश रहेगा। और जो लद्दाख का जो हेल्थ सेक्टर है वो और मजबूत करेंगे, इस प्रकार की हमारी कोशिश। टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है। देखिए आने वाले समय में स्पेशली कुछ डॉक्टर्स को, कुछ ऐसे टेक्नीशियंस को वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जिससे कि वो टर्न वाइज वहाँ पर जाएं और लोगों को यहाँ पर मशीन के चलाने के काबिल हो, उनको फैसिलिटी दे सकें। सर मिनी एम्स को लेकर क्या कहेंगे, जो सीसी साहब ने भी कहा था एक देखिए कोशिश करेंगे, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं, वादे नहीं करते, वादे झूठे हो जाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था